السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن کا قیام، امگنا کے پرنسپل سیکریٹری صدر نشین مقرر۔ گراما جیوتی پروگرام کے لیے آئندہ 4 سالوں میں 25,000 کروڑ خرچ کرنے کا اعلان، کریم نگر میں وزیر اعلیٰ کا اعلیٰ سطحی اجلاس۔ حیدرآباد کی جھیلوں کی صفائی اور تحفظ کے لیے جنگی خطوط پر اقدامات کرنے، وزیر آبپاشی کی عہدیداروں کو ہدایت، سیکریٹریٹ میں اعلیٰ سطحی اجلاس۔ ملک پیٹ میں طلائی چین اور بالیوں کے سرقے کے لیے خاتون پر حملہ آور فرار۔ بورا بنڈا میں 2 روز پہلے پیش آئے قتل کا معمہ حل، مقتول کی بیوی اور بیٹا گرفتار۔ اور اپل میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر 500 نوجوانوں کو دھوکہ دینے والی ٹولی گرفتار۔ اور اب تفصیل۔ ریاستی حکومت نے تلنگانہ اسٹیٹ ہاؤسنگ کارپوریشن لمیٹڈ قائم کرتے ہوئے احکام جاری کر دیے۔ احکامات کے مطابق اس کارپوریشن کے لیے 10 ڈائریکٹرز ہوں گے اور کارپوریشن کے صدر نشین محکمہ امکنہ کے پرنسپل سیکریٹری ہوں گے، اور دیگر ڈائریکٹرز میں محکمہ فائنانس کے پرنسپل سیکریٹری، محکمہ توانائی کے پرنسپل سیکریٹری کے علاوہ دوسرے شامل ہیں۔ حکومت نے اس کارپوریشن میں ابتدائی حصص کے طور پر 25 لاکھ روپے کیے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے 4 سالوں میں گراما جیوتی پروگرام کے لیے 25,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ ضلع کریم نگر میں کلکٹر کے دفتر میں وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے پینے کے پانی کے پروجیکٹس کا جائزہ۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دیہاتوں کی ترقی حکومت کا مقصد ہے اور حکومت کے اس مقصد اور دیہاتوں کی ترقی کے لیے ہر کسی کا تعاون درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت 200 کروڑ روپے کے کاموں کو منظوری دی گئی ہے۔ جی ایچ ایم سی کے حدود میں کچرے کی نکاسی کے لیے 2500 آٹو ٹرالیز کا آرڈر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت وہ گورنر کے ہمراہ ایک بار پھر بستیوں کا دورہ کریں گے۔ پٹنم جیوتی پروگرام کے تحت میونسپلٹیز میں بے قاعدہ لے آؤٹس اور عمارتوں کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ کے سی آر نے کہا کہ بہبودی پروگراموں میں تلنگانہ ملک بھر میں پہلے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ غیر ضروری ہڑتالوں کے ذریعے اپوزیشن واویلا مچا رہی ہے۔ اپوزیشن کو ضمیر کی آواز کے مطابق رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے بتایا ریاست میں آبپاشی پر نئی پالیسی متعارف کی جائے گی۔ کرشنا بورڈ کے فیصلے کے بعد تلنگانہ اور آندھرا ریاستوں کے لیے 5,000 کیوسک پانی چھوڑا گیا ہے۔ کرشنا بورڈ نے منگل سے 10 دن تک 4.3 ٹی ایم سی پانی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہر روز 5,000 کیوسک پانی چھوڑا جائے گا، جس کو دونوں ریاستوں میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر کمرشل ٹیکس ٹی سرینیواس یادو نے بتایا ہے کہ 19ویں چلڈرن فلم فیسٹیول 14 نومبر سے حیدرآباد میں منعقد ہوگا۔ اس سلسلے میں ایف ڈی سی شعبے کے عہدیداروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا، جس میں 19ویں فلم فیسٹیول کا جائزہ لیا گیا۔ 14 نومبر کو للیتا کلاتھورانم میں فلم فیسٹیول کا آغاز ہوگا۔ 20 نومبر کو اختتامی تقریب میں بہترین فلم کا ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ فلم کے مسائل کی یکسوئی اور اس کی ترقی کے لیے ماہرین کے ذریعے ایک رپورٹ تیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے فلمی صنعتی سے اپیل کی ہے کہ وہ واٹر گرڈ، مشن کاکتیہ،
स्वच्छ हैदराबाद जैसे प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने के लिए फिल्मी सनत ताउन करे। वज़ीर आपाशी हरीश राव ने अजीमतर हैदराबाद और हमडा की झीलों की सफाई और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटेरिएट में महकमे आपाशी, वाटर वर्क्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़्क़िदा इजलास में हरीश राव ने बताया कि जुमला 169 झीलों में 34 झीलों को कारकर्द बनाने के कामों के लिए 64 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिनमें 17 के टेंडर्स भी तलब किए जा चुके हैं। उन्होंने हिदायत दी कि इन झीलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्फोर्समेंट फोर्स तैयार की जाए ताकि वहाँ गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने उस्मान सागर और हिमायत सागर की तरक्की के लिए दिए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद कहा कि इसके लिए जुमला 37 करोड़ 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। दरकार फंड्स के लिए महकमे आपाशी, अजीमतर बल्दिया हैदराबाद, IT कंपनी और कॉरपोरेट कंपनियां और फिल्मी सनत से ताउन हासिल किया जाएगा। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि दरकार फंड्स के हुसूल के लिए फिल्मी सितारों के जरिए एक चैरिटी क्रिकेट मैच भी मुनक़्क़िद किया जा सकता है। वज़ीर आपाशी ने ओहदेदारों से कहा कि इजलास में लिए गए फैसलों पर अमलावरी की जाए। इस सिलसिले में पेशरफ्त का जायज़ा 2 हफ्तों के बाद मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में लिया जाएगा। नारायण खेड़ के कांग्रेसी रुकन असम्बली किष्टा रेड्डी चल बसे। 74 साला किष्टा रेड्डी असम्बली की अवामी जवाबदेह कमेटी के सदरनशीन भी रह चुके हैं। गुज़िश्ता रात दिल का दौरा पड़ने के बायस उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया गया था। ताहम डॉक्टर्स ने मुआयने के बाद इस बात की तस्दीक की कि वो नहीं रहे। जैसे ही किष्टा रेड्डी के गुजर जाने की खबर आम हुई, सियासी खतूत से बालातर होकर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने दवाखाना पहुँचकर उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने ताज़ियती पैगाम में पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आला ने किष्टा रेड्डी की खिदमात को खिराज पेश किया। स्पीकर असम्बली मधुसूदन चारी, डिप्टी स्पीकर पद्मा देवेंद्र रेड्डी, असम्बली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी, कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़, नायब वज़ीर आला के श्रीहरी, रियासती वज़रा ई राजेंद्र, हरीश राव, टी श्रीनिवास रेड्डी, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट भट्टी विक्रमार्का, अराकीन असम्बली DK अरुणा, साबिक़ वज़ीर गीता रेड्डी, रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के अलावा दीगर कई कायदीन ने दवाखाना पहुँचकर किष्टा रेड्डी के अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। तालाब कट्टे की हुदा बेगम के कातिल को सख्त सज़ा दिलवाने के लिए कमिश्नर पुलिस के तयक़्क़ुन के बावजूद मकामी अवाम और शहरियों के जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। CCTV फुटेज ने पेचीदा कत्ल के वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार करने में मदद दी है। मासूम हुदा बेगम के कातिल को जल्द अज जल्द इबरतनाक सज़ा दिलवाने के मुतालबे को लेकर अवामी बरहमी और इनके जज्बात में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि कमिश्नर पुलिस ने यह तयक़ुन दिया था कि महकमा पुलिस इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुलजिम की ज़मानत ना होने पाए और क़ब्ल अज़ वक्त चार्जशीट दाखिल करते हुए फास्ट ट्रैक अदालत के ज़रिए कातिल को सज़ा दिलवाई जाएगी। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि ऐसे लोग 302 क्राइम करते हैं, फिर बाद में जुडिशल कस्टडी दी जाती है, फिर 3 मंथ्स के बाद वो बैक आते हैं, तो फिर ये लोग सोसाइटी में ऐसे रह के फिर दूसरे क्राइम करते हैं। तो पुलिस का क्या मोटिव होगा ये केस के पीछे, स्पेशली ये केस के पीछे, कि वो क्या काम करेगी? ये फास्ट ट्रैक ट्रायल में रखे तो ये बिना बेल के अंदर ही रख के ये ट्रायल कंप्लीट होने तक जेल में रखने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे और हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट 1 वीक में कंप्लीट करके चार्जशीट डाल देंगे और उसके बाद हम MSJ मैडम के मिलके ये फास्ट ट्रैक ट्रायल करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और हो सकता है नेक्स्ट 3-4 महीने में ट्रायल कंप्लीट करके इसको सज़ा दिलाने के लिए हम ज़रूर पूरी ताकत से एफर्ट करेंगे। इसके बावजूद मुकामी आवाम में बेचैनी देखी जा रही है।
मुकामी आवाम के एक वफद ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए पुलिस पर दबाव बढ़ाने का मुतालबा किया। और हमारा मुतालिबा क्या है, उसको बेल पे नहीं छोड़ना। अगर बेल पे छोड़ेंगे तो फिर हमारे हाथ से उन्हें खत्म हो जाएगा। उन्हें बाहर नहीं दिखना या उसको अंदर ही रख के उसको फांसी देना। और बड़े लोग साथ दिए, असद साहब, अकबर साहब साथ दिए, तो ये हम लोग कर सकते हैं। अवाम में इस बात की भी भरमी है कि कातिल खुद को मासूम साबित करने के लिए मकतूला के जनाजे में भी दीदा दिली के साथ शामिल था। कमिश्नर पुलिस के मुताबिक इस पेचीदा केस की सुई सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुमकिन हो सकी, क्योंकि तालाब कट्टे जैसे गुंजान इलाके में कोई भी ऐसा फर्द सामने नहीं आया जिसने दस्तगीर को हुदा के साथ जाते हुए देखा हो। काफी जिद्दोजहद के बाद पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक गैर वाज़ेह नौजवान के साथ मासूम हुदा को जाते हुए देखा गया। पुलिस ने इस फुटेज के साथ अतराफ के कैमरों की फुटेज का भी जायजा लिया तो हुदा के साथ मौजूद नौजवान को उसी कपड़ों में गौलीपुरा में वाक़ शराब की दुकान पर शराब लेते हुए देखा गया और यही फुटेज मुलजिम की शिनाख्त और गिरफ्तारी का सबब बना। कमिश्नर पुलिस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सीसीटीवी कैमरों की सहूलत से न सिर्फ मुजरिमों की शनाख्त हो रही है बल्कि जराइम की रोकथाम भी की जा सकती है। मंजूर खान के साथ मैं एसएम रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। हज हाउस में आज़मीन हज के क़ियाम के सिलसिले में इंतज़ामात ज़ोर शोर से जारी हैं। 4 टीवी से बात करते हुए तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SA शकूर ने बताया कि गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल मज़ीद मौसर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 इमारतों, खुले इलाके और ज़ेर तामीर इमारत में भी आज़मीन के क़ियाम के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खुले इलाके में वाटरप्रूफ शेड्स नस्ब किए जा रहे हैं। SA शकूर ने बताया कि 2 ता 8 सितंबर 16 फ़्लाइट्स रवाना होंगी। पहली फ़्लाइट 2 सितंबर को शाम 6 बजे रवाना होगी। उन्होंने बताया कि एक फ़्लाइट में 140 मुसाफिरीन की गुंजाइश रहेगी। आज़मीन को किसी भी तरह की मुश्किल से बचाने के लिए मौसर इंतज़ामात को क़तइयत दी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला 2015 के हज कैंप का आगाज़ 31 अगस्त से शुरू होगा यहाँ पर, जिसके लिए तमाम तर इंतज़ामात बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल और वसी तौर पर यहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जुमला 4 प्लेसेस पे, 4 जगह पे 2 बिल्डिंग्स और 2 एक खुला एरिया और एक जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 4 मुकामात पर ये कैंप के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। तो फ़्लाइट्स का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला 2 सितंबर से होगा। पहली फ़्लाइट 2 सितंबर सुबह 6 बजे आगाज़ है और तकरीबन रोज़ाना हर रोज़ तकरीबन 3 फ़्लाइट्स हैं। जुमला 16 फ़्लाइट्स हैं। 2 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक जुमला 16 फ़्लाइट्स हैं और ये सारे के सारे एयर इंडिया की फ़्लाइट्स हैं और हर फ़्लाइट में 340 की कैपेसिटी है, यानी कि 340 आज़मीन उसमें सफ़र कर सकेंगे हर फ़्लाइट में। तो मैं तमाम आज़मीन से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने शेड्यूल टाइम से, यानी कि फ़्लाइट के टाइम से 48 घंटे क़ब्ल यहाँ पर हज कमेटी पे रिपोर्ट करें और 10 घंटे क़ब्ल उनका प्रोसेस जारी होगा, यानी कि उनके उमूर की तकमील होगी। राज्यसभा के रुकन वी हनुमंतराव ने ऐलान किया है कि 27 अगस्त को ज़िले वरंगल से मरकज़ी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज शुरू किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि फ़ीस बाज़ अदायगी और किसानों के मसाइल के अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से सस्ती शराब को फ़रोग़ देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाएगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बदउनवानियों में मुलव्वस क़ायदीन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के 9 अज़ला में एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म किए जाएंगे। हनुमंतराव ने कांग्रेसी क़ायदीन से इस एहतजाज को कामयाब बनाने की अपील की है। TRS के रुकन असम्बली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो मरकज़ के रवैये के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि अपोजिशन जमातें सिर्फ वज़ीर आला को निशाना बना रही हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा की तक़सीम के बाद मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया है।
अगर मरकजी हुकूमत इसी तरह तेलंगाना को नज़रअंदाज करती रही तो फिर एक नई तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। लंबाड़ा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उनकी हिदायत पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज को लंबाड़ा तबके के मसाइल से वाकिफ़ करवाया। वफ़द में तेलंगाना के 10 अज़ला के नुमाइंदे मौजूद थे। टीआरएस के रुकन कौंसल के प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना के साथ मरकजी हुकूमत का रवैया मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने बिहार की तरह तेलंगाना के लिए भी खुसूसी पैकेज के ऐलान का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ देहातों की तरक्की के लिए ही मरकज़ मदद की बात कर रहा है। रियासत की तक़सीम जदीद बिल में कई वादे किए गए थे, लेकिन मरकज़ तेलंगाना के साथ सौतेला रवैया इख्तियार किए हुए है। उन्होंने कहा कि सड़कों, तालीम और ज़राअत के शोबों में तेलंगाना को मदद की ज़रूरत है। शहर की मारवाड़ी बरादरी की 10 तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और शहर की तरक्की के लिए मजलिस में शामिल होकर काम करने का ऐलान किया। वफ़द के एक बुज़ुर्ग क़ायद ने बताया कि वो लोग राजस्थान, हरियाणा और दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं और शहर में तिजारत करते हैं। काफ़ी गौर व खौज़ के बाद उनकी बरादरी ने महसूस किया कि मजलिस ही वो वाहिद जमात है जो बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत ज़रूरतमंदों के हक़ में न सिर्फ नुमाइंदगी करती है बल्कि शहर की तरक्की और ताजरीन के मसाइल के हल के लिए भी संजीदगी के साथ इक़दामात करती है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गायत्री भवन में उनका एक बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें सदर मजलिस को मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ करते हुए उन्हें सारे समाज की तायद का यकीन दिलाया जाएगा। संगारेड्डी के रहने वालों को रैतू बाजार से प्याज खरीदने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में रैतू बाजार में सिर्फ 2 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं। लोग सुबह 8 बजे से प्याज 20 रुपये फ़ी किलो खरीदने के लिए कतार में ठहरते हैं, लेकिन काउंटर्स की तादाद कम होने से कतार में ठहरे अफराद प्याज खरीद नहीं पाते। मकामी अफराद ने 4TV के ज़रिए कलेक्टर संगारेड्डी से मुतालबा किया है कि वह काउंटर्स की तादाद में इजाफा करे ताकि हुकूमत की जानिब से पहुँचाई जाने वाली इस सहूलत से सभी को फ़ायदा हो सके। उप्पल पुलिस में मुलाजिमतों का झांसा देकर धोखा देने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि श्रीनिवास, यादगिरी और भास्कर ने 2012 में महकमे पुलिस में मुलाजिमतों का झांसा देकर तकरीबन 500 नौजवानों से 15 लाख रुपए से ज़ायद की रकम हड़प ली थी। मुतासरीन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि पहले एक उम्मीदवार से 16 लाख रुपए तलब किए गए थे, ताहम तमाम उम्मीदवारों ने 15 लाख रुपए जमा करते हुए श्रीनिवास के हवाले किए। नताइज आने पर नाम न होने से दिल बर्दाश्ता उम्मीदवारों ने जब श्रीनिवास से रब्त पैदा किया तो वो मुख्तलिफ बहाने बनाने लगा, जिसके बाद मुतासरा उम्मीदवारों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। तहकीकात के दौरान पता चला कि श्रीनिवास और उसके 2 साथियों ने धोखा देकर उम्मीदवारों से ये रकम हड़पी है। पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया। मलकपेट जजेस कॉलोनी में दिन दहाड़े एक खातून पर हमला करके तिलाई चेन और बालियां छीन लेने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अपार्टमेंट में काम करने वाले चौकीदार की बीवी के गले में तिलाई चेन देखकर बाइक पर सवार नौजवान अंदर दाखिल हुए और वरा लक्ष्मी नामी खातून पर हमला करते हुए उसके गले से तिलाई चेन और कान की बालियां छीन कर फरार हो गए। मुतासरा खातून जो जख्मी हालत में थी उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज कर लिया है। बच्चों के सेफ्टी के लिए एंड व्हीकल्स एंड एवरी सिक्योरिटी के लिए सभी प्रीमिसेस में कैमरा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा, वो आने वाले को भी थोड़ा सा डर रहता कि हम लोग कैप्चर हो जाए वीडियो में, फिर वो देख के थोड़ा सा वो लोग नहीं आ सकते उतना ईजिली जो आज आ सके हमारे पास वो बिल्डिंग में। तो यहाँ पे बहुत हम लोग सुन रहे हैं, ये आजकल बहुत होते जा रहे हैं। टू अवॉइड फर्स्ट स्टेप टू टेक दी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल इन द प्रेमिसेस
and close by police people are also announcing the same thing repeatedly. So make the CCTVs installed in your premises to avoid these all kind of things. कि आप अपने बच्चों का अपने premises का थोड़ा सा सेफ्टी सोच के उसको आप आगे लेके जाइए. बोराबंडा स्वराज नगर के इलाके में 2 दिन पहले पेश आए एक कत्ल के मामले को हल करते हुए पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक मायत्री मारुति नामी शख्स का मकान के तनाज़े को लेकर अपने बेटे अब्राहम के साथ तनाज़ा चला आ रहा था। अब्राहम के साथ मायत्री मारुति का 2 दिन पहले भी झगड़ा हुआ था और इसी दौरान अब्राहम ने अपनी मां तेजा अम्मा के साथ मिलकर मायत्री मारुति का गला काटकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने पीर की रात अब्राहम और उसकी मां तेजा अम्मा को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। हुसैनी अलम पुलिस ने नाबालिग लड़की को जबरदस्ती गुलबर्गा ले जाकर इस्मतरेजी करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी चारमीनार अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 22 अगस्त को जलाल कूचे की साकिन फहमीदा बेगम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 अगस्त को उनकी 15 साला बेटी घर से रवाना हुई थी लेकिन वापस नहीं आई। ताहम 22 अगस्त को 23 साला शरीफ नामी ऑटो ड्राइवर उसे उनके मकान के पास छोड़कर फरार हो गया। लड़की ने अपनी मां को बताया कि 1 महीने पहले वो चारमीनार के पास शरीफ से मिली थी और उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई। 19 अगस्त को जब मुतासरा लड़की किसी काम के लिए चारमीनार गई तो शरीफ ने उसे ज़बरदस्ती अपने ऑटो में बिठा लिया और फिर अफजलगंज से आरटीसी बस के ज़रिए उसे गुलबर्गा लेकर रवाना हो गया। गुलबर्गा पहुंचने के बाद उसने नाबालिग लड़की की मर्जी के बगैर उसे लॉज में रखा और उसकी इस्मतरेजी की। शरीफ ने लड़की से शादी करने का वादा किया था। 21 अगस्त को वो उसे हैदराबाद लेकर आया और मकान के सामने छोड़कर फरार हो गया। मुतासरा लड़की की मां की शिकायत पर हुसैनी आलम पुलिस ने सेक्शन 366A, 368 और 376 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए शरीफ को 25 अगस्त की सुबह 9:30 बजे चारमीनार के करीब बेकरी के पास से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया है। बताया गया है कि ऑटो ड्राइवर शरीफ इससे पहले भी शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में 14 मुकदमात में मुलव्विस रहा है। मेड़पल्ली पुलिस ने सरके की वारदातों में मुलव्विस आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। मीडिया से बात करते हुए पुलिस ने बताया कि लक्ष्मण ने मेड़पल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की वारदात अंजाम दी थी। शिकायत दर्ज होने पर तहकीकात करते हुए पुलिस ने लक्ष्मण को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 8 लाख रुपए मालियत के मसरूक़ा जेवरात और एक बाइक जब्त कर ली। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन का क़याम, अमगिना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर नशीन मुकर्रर। ग्रामा ज्योति प्रोग्राम के लिए आइंदा 4 सालों में 25,000 करोड़ खर्च करने का ऐलान। करीमनगर में वजीर आला का आला सतही इजलास। हैदराबाद की झीलों की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंगी खतूत पर इक़दामात करने वजीर आबपाशी की ओहदेदारों को हिदायत। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास। मलकपेट में तिलाई चेन और बालियों के सरके के लिए खातून पर हमला आवर फरार। बोराबंडा में 2 रोज पहले पेश आए कत्ल का मुअम्मा हल, मकतूल की बीवी और बेटा गिरफ्तार। और उपल में मुलाजिमतों का झांसा देकर 500 नौजवानों को धोखा देने वाली टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।